library classes of Java. Now, कुछ library classes हम लोग string का last class में किए हैं, and I wanted to complete the others in the class itself. I do not want to leave out anything. So we'll be starting with the library classes that are left out. The first library class that we will be doing today will be the math class. So math class में काफी सारे functions होते हैं. So there are a lot of functions here. So math class. The math class is present in the package java.lang, ठीक है, which is auto imported, ठीक है. This is the only package that is auto imported. इस class में you have string class, इस class में you have the system class. Sorry, इस package में आपके पास system class है, string class है. You have all the wrapper classes like integer class and character class. So there are a lot of classes here, and we'll be doing most of them. ठीक है. So हम लोग start करेंगे with the math class functions, and math class function का पहला function जो हम लोग करेंगे, it will be math.sin x, ठीक है. So x लेते हैं यहाँ. So x can be an integer, it can be a double, ठीक है, any numerical value, ठीक है. So the return type is double, ठीक है. जरूरी नहीं है कि एक साइन का वैल्यू हमको इंटीजर में मिले. It is always unpredictable along with the type of angle that we are getting. Now, what does it do? The function returns the sine of the angle x in radians. The function returns the sine of the angle x in radians. For example, हम लिख सकते हैं math.sin 6. तो ये हमको एक वैल्यू देगा, ठीक है. नाउ द एंगल आपको रेडियन में हो सकता है, एंगल आपका डिग्रीज में हो सकता है. So there are 2-3 ways of representing an angle. Radian is one of them. ठीक है, degrees is the other. There's one more way which you do not need to know exactly. So हम लोग इसमें इनपुट देते हैं radians, ठीक है. So 1 radian is about 1 radian is about 57.296 degrees, ठीक है. So this will go give you the वैल्यू. So अगर आपके पास 1 रेडियन देंगे तो इस एंगल का आपको साइन मिलेगा. अगर आप 6 रेडियन देंगे तो इंटू 6 कर लिए, उस एंगल का आपको मिलेगा. द नेक्स्ट वन विल बी math.cos. इसका रिटर्न टाइप भी डबल है, ठीक है. एंड ये फंक्शन क्या करता है? द फंक्शन रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ द एंगल x इन रेडियंस, ठीक है. सेम चीज है. अगर हमको यहाँ साइन लिखा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे math.cos, लेट्स से 6 देंगे तो हमको ये आंसर दे देगा. सो व्हाई आर वी डूइंग दिस? सपोज हम आपको बोलते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और हम आपको बोलते हैं कि इनपुट आई एंड आर एंड प्रिंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया. तो आप लोग क्या लिखोगे? आर आई इज इक्वल टू मैथ डॉट साइन आई बाई मैथ डॉट साइन आर, ठीक है. So you are going to do something like this. Now this is very important for us to understand why we are doing this. Always remember, हम लोग
ये चीज मैथ्स में नहीं लिख रहे हैं, ये चीज हम लोग कंप्यूटर में लिख रहे हैं। कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। सो इफ यू जस्ट try to write this thing in the computer, it will not work because the computer might not understand it. ठीक है, so it is all about understanding what the computer can understand and giving the instructions to the computer according to what it can understand. ठीक है, similarly we have math sin cos हो गया तो ऑब्वियसली एक tan बचा है तो हो जाएगा math dot tan, इसमें कोई वैल्यू होगा। इसका भी रिटर्न टाइप है डबल, and obviously this returns the tangent of the value. ठीक है, so we basically write math dot tan और यहाँ कोई वैल्यू दे देते हैं। ओके, ना साइन का भी उल्टा होता है, कॉस का भी उल्टा होता है, रिवर्स होता है, हम लोग उसको इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, या कॉस इनवर्स बोलते हैं या tan इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, बट इनवर्स फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शंस को अगर आपको कहीं भी इनवर्स फंक्शन ऐसे लिखा हुआ रहा, सो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है। विल राइट दैट इन अनदर कलर, मैथ डॉट ए साइन हो जाएगा। और यहां हम लोग वैल्यू देते हैं, एंगल नहीं देते हैं। सो वाई या मैथ डॉट ए कॉस हो जाएगा, एंटी कॉस बोलेंगे, एंटी साइन बोलेंगे। ठीक है, वाई हो जाएगा मैथ डॉट ए टैन हो जाएगा वाई। ठीक है, सबका रिटर्न टाइप है डबल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इज these functions return the angle for which the value of the sine or cos or tan ratio was y. For example, if we take an example like 0.5, हम पूछ रहे हैं कि 0.5 कॉस का कौन एंगल में आता है, तो हम बोलेंगे कॉस इनवर्स 0.5 अगर देंगे तो ये बोलेगा 60 डिग्री। नॉट डिग्री में नहीं रहेगा, इसका आंसर रेडियंस में रहेगा, बट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि डिग्रीज में आ रहा है। सो आंसर विल बी, आंसर इज इन रेडियंस। ठीक है, सो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ विल बी 60 डिग्री। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ विल बी 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर? Now there are a few other ones. Not, I do not want to go into that. It's something that doesn't really come in. So we can leave the trigonometric part here. Then we have the pow function. Math dot pow x comma y. इसका वैल्यू होता है, alright. So math dot pow x comma y, इसका रिटर्न टाइप होता है डबल। ठीक है, returns, this function returns the value of x raised to the power of y. So अगर हम लिखेंगे math dot pow 4 कॉमा या 3,5, तो ये हमको देगा आंसर 243.0, क्योंकि ये आंसर डबल में देगा। अगर हम लिखेंगे मैथ डॉट पाव 5,3, तो ये हमको देगा 125.0।
अगर हम लिखेंगे मैथ डॉट पाव 25 कॉमा 0.5, तो ये हमको देगा 5, यानी हम लोग इसको रूट के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो इट इज अबाउट ऑल द पावर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रेजिंग इट टू अ पावर ग्रेटर देन 1 और 1, बट इट इज ऑल्सो अबाउट रेजिंग इट टू अ पावर बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, सो हम लोग रूट्स को भी यूज कर सकते हैं. सो 1/3 दे सकते हैं, 1/4 दे सकते हैं. सो वी कैन यूज दैट ऑल्सो. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन. इसका प्रोग्रामिंग काफी टफ है, सो वी जनरली डू नॉट प्रोसीड बाय डूइंग एन आंसर लाइक दैट. तो हम लोग को जब भी पावर यूज करना होता है तो हम लोग डायरेक्टली ये फंक्शन यूज करते हैं, until unless it is a power that is simple to be done on our own. The next one is exponent. Now मैथ में एक्सपोनेंट एक वैल्यू है. मैथ में एक्सपोनेंट एक वैल्यू है. ठीक है. So exponent का value is up around 2.73. It's a value. It's a mathematical value. So जब भी हमको इस value को power में raise करना होता है, ठीक है, जब भी इस value को हमको power में raise करना होता है, this function returns the value of e raised to the power of x. E raised to the power of x. ठीक है. All right, so let's move forward. The next function that we are going to do is math dot log x. तो याद रखिएगा log हमने लास्ट ईयर किया है एंड इसका रिटर्न टाइप भी डबल होगा. एंड log का यूज है, वी हैव डन logarithm ऑफ 10 टू द बेस 10, ये 1 देता है. हम लोग किया log 100 टू द बेस 10, ये 2 देता है. तो जब हम लोग नॉर्मल log लिखते हैं तो ये फंक्शन रिटर्न्स द value of log to the base 10 of x. ठीक है, we'll do all the values. I think base 10 है. Let we'll just check it out अगर base 10 नहीं है. ठीक है, so let's see math dot sqrt. sqrt is the short form of square root. ठीक है, so ये भी डबल रिटर्न करेगा. so returns the square root of x. ठीक है, तो अगर आपको रूट ऑफ 5 निकालना है तो आप लोग लिखेंगे मैथ डॉट sqrt 5. ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट. वी हैव मैथ डॉट सील. मैथ डॉट सील. ठीक है, इसका रिटर्न टाइप शुड बी इंटीजर, बट आई जस्ट वेरीफाई दिस. आई एम नॉट श्योर कि इंटीजर है कि नहीं, और शुड बी इंटीजर और डबल. ठीक है, सो इंटीजर अभी हम लोग लिखते हैं. लेट्स सी वेदर इट्स रिटर्निंग इंटीजर. आई थिंक इट रिटर्न्स डबल, राइट? Returns double. I Yeah, it returns double, but it rounds up the value and returns it. So अगर हम लिखेंगे math dot seal 4.3, तो ये हमको देगा 5.0. अगर हम लिखेंगे math dot seal minus 5.6, तो ये हमको देगा minus 5.0. ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं. ठीक है, नाउ math dot floor x. इसका रिटर्न टाइप भी डबल होता है और ये रिटर्न करता है द लोअर डाउन वैल्यू
या returns a value rounded down, returns a value rounded down, ठीक है, कि हम लोग बोलेंगे returns the lower integer value, ठीक है। नाउ सपोज मेरे पास x है, लेट्स से x इज 7.4, तो इसके बाद मेरा वैल्यू 8 होगा, इसके बाद हमको 7 मिलेगा, तो हमको मैथ डॉट फ्लोर क्या देगा, 7.4 ये देगा, और मैथ डॉट सील क्या देगा, 7.4 हमको ये देगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। बट अगर यही चीज हम देखेंगे माइनस लेट्स से -5.7 के लिए, तो इसका अपर इंटीजर वैल्यू -5 होगा, लोअर इंटीजर वैल्यू मेरा -6 होगा, तो मैथ डॉट फोर हमको -6 देगा, मैथ डॉट सी हमको -5 देगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गलती काफी बार होता है, एंड दे यूजुअली गिव क्वेश्चन लाइक दिस ओनली टू मेक श्योर दैट यू मेक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैथ डॉट राउंड एक्स, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, सो देयर आर अ फ्यू फंक्शंस जिसका इंटीजर रिटर्न टाइप होता है, मोस्ट ऑफ देम हैव डबल, मैक्सिमम का डबल होगा, ठीक है। रिटर्न्स द राउंडेड ऑफ वैल्यू, राउंडेड ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो मैथ डॉट राउंड हमको क्या देगा, मैथ डॉट राउंड क्या देगा, मैथ डॉट राउंड एक्स हमको देगा और लेट्स से 3.7 हमको ये रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। नाउ वी हैव math dot abs x, ठीक है। math dot abs x आपको रिटर्न टाइप, I think it is double. We'll just verify this one also. Yes, but absolute value हम बताते हैं क्या होता है. It is double. So if I have um, -7.4 ऐसा, so the symbol denotes that only absolute value is needed. Absolute value gives the magnitude of the value. Absolute value gives the magnitude of the value, ठीक है। So ठीक है, so if you ever have a value x like that here, it will give you only magnitude. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि ये हमको देगा 7.4, दैट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो बेसिकली we get a positive value every time, irrespective of whether the value is positive or negative, irrespective of whether the value is positive or negative, ठीक है। So if I have 7.7 का absolute value, तो ये हमको 7.7 ही देगा। Next one, math dot max a comma b, ठीक है। रिटर्न टाइप जनरली इसका डबल होना चाहिए, इंटीजर भी होता है, ठीक है। सो इट returns the larger of the two number,
सो अगर हम लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स, अगर हम लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स 2,4 तो ये हमको आंसर 4 देगा। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे मैथ डॉट मिन ए कॉमा बी, इसका रिटर्न टाइप भी डबल या इंटीजर होगा। And obviously, as the name says, this is also going to give us, it returns the smaller of the two numbers. Math dot min 2,4 will give me 2. ठीक है, so this is the list of math functions that we have in the syllabus. So what we are going to do, there's one more now, there's one more, yes, it is not mentioned in the book, but some books have already mentioned it. Math dot random, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, इसका रिटर्न टाइप डेफिनेटली डबल होता है और इसका काम बहुत सिंपल है। इट विल रिटर्न अ वैल्यू या अ रैंडम वैल्यू, एज द नेम सेज, अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच का एक रैंडम वैल्यू वो रिटर्न करता है। ठीक है, सो द वैल्यू विल बी रैंडम, कंप्लीटली रैंडम। ओके, so all of you can see the screen and let us do math class. ठीक है, तो मैथ नहीं लिखेंगे, मैथ क्लास लिखेंगे, मैथ क्लास। ओके, लेट्स डू दिस। ओके, सो क्लास, मैथ्स क्लास, वी कैन राइट अवर नेम लाइक दैट बिकॉज सिर्फ क्लास नहीं लिख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है। Okay, so we'll write a few values and we'll see what is going to happen. We'll print all the values. Math dot sign, sign में 6 दे देते हैं, let's see, and we'll just copy this. All right, ये हो जाएगा cos, cos tan, tan, ठीक है। ओके, लेट्स डू a साइन, a साइन देंगे हम 0.5, ठीक है, 0.5। एक cos देंगे हम लोग 0.5, ठीक है। we will give a tan, a tan में 0.5 नहीं देंगे, 1 देंगे, 45 डिग्री का 1 होता है a tan। ओके, हम लोग देंगे मैथ डॉट एक्सपोनेंट रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। सो एक्सपोनेंट रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। विल राइट मैथ डॉट लॉग, लॉग में हम लोग 100 देते हैं, देखते हैं क्या आंसर देता है। लॉग 100, ओके। मैथ डॉट एसक्यूआरटी, एसक्यूआरटी हम लोग 25 का लेते हैं, so that should be easier for you to understand। 25, we have मैथ डॉट सील, सील देते हैं 0.5 ही रहने देते हैं, इसका आंसर आपको समझ में आएगा। ओके, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर देगा लोअर इंटीजर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट मैथ डॉट रेंट, हम लोग देते हैं 3.45, रेंट देते हैं 3.45,
9.5 देता है, 4.5 नहीं देता है। देखते हैं क्या देता है ये। मैथ डॉट राउंड सेम वैल्यू को देते हैं मैथ डॉट राउंड में। ग्रेट। मैथ डॉट एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू -5.6 -5.6। ठीक है, लेट्स लुक एट अनदर वन। ओके, रिंट हम बताया नहीं है, तो आई वांट टू शो इट टू यू, सो लेट्स जस्ट see the values first and then we'll answer it. Great. Let's move forward with math dot max 3,95 max 3,95 math dot min 3,95 minimum 3,95. Okay, and we also have math dot random. Random में कोई पैरामीटर नहीं होता है, so let's put that. I think we are good to go. Let's run this. Let's run this. Minus 2.2794, 9.61760, 0.96017, minus 291. A sign में देखिए आपको all of these values are in radians. Okay, all of these values are in radians. ठीक है, so let me just show this to you. So अगर डिग्री में लेते हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम लिखते हैं साइन ऑफ, क्या वैल्यू मिल रहा था हमको, ये मिल रहा था, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सिक्स का साइन लेते हैं, 6 साइन, देखिए यही वैल्यू आ रहा है रेडियंस में, और इसको अगर हम लोग इनवर्स कर देंगे, इसमें इनवर्स है, you cannot see inverse here. Anyway, so we are getting the value, right? So ये वैल्यू जो है ये रेडियन में है, और रेडियन का वैल्यू हमको ऐसे मिलता है, so we are getting the value anti sine and anti cos. Now if I use this same value, let's use that same value, so we'll come close, just a minute, अगर हम सेम वैल्यू लेते हैं इसमें, will come close to 6, should come close to 6 because ये truncated value है. Let us see the output. Just a second. The answer is right. Let me just give you one and show it to you क्या आ रहा है. Let us say method sign 1 लेते हैं. The answer is this. Let us try this one. Let us try this one here. Should come close to 1. Let's run this. देखिए 1 आ रहा है हम लोग का आंसर. वो इसलिए आ रहा था कि उसमें कुछ और भी फंडा था, बट आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स. 6 एक्चुअली 6 रेडियंस इज एक्चुअली मोर देन 360, इसलिए आंसर आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रहा था. बट जब हम लोग 1 दिया तो हम लोग का आंसर परफेक्टली रेप्लिकेट हो रहा है कि इफ साइन 1 का ये वैल्यू है तो इसी का उल्टा हमको 1 देगा, यानी 1 रेडियन, तो दैट इज अराउंड 57 डिग्रीज. ठीक है,
सो लॉग का देखिए, log 100 हमको 4.6 दे रहा है. आई वाज टेलिंग यू द सेम थिंग दैट इट इज नॉट, I wasn't sure कि वो base 10 था. So this is not base 10. This is natural log. Natural log का base e होता है, exponent होता है natural log का base. ठीक है. So वो e को base लेके हमको value देता है. So आपका value 100 का ये आ रहा है. So if I change this, गौर से देखिएगा, log math dot exp1, ठीक है, math dot exp1, ठीक है, exponent to the power of 1. Let us try and run this. थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे. देखिए आंसर हमको 1 दे रहा है. ठीक है. सो ये बेसिकली आपका बेस यहाँ 10 नहीं है, बेस आपका 2 नहीं है, 3 नहीं है, बेस आपका एक्सपोनेंट है. दिस इज समथिंग दैट यू शुडंट नो अ लॉट. सो we'll keep it that way. Square root of 25 is 5, seal is 1, floor is 0, rent is 4.0. यानी ये राउंड ऑफ करता है, ट्रंकेट नहीं करता है, ये राउंड ऑफ करता है. राउंड में देखिए आपको इंटीजर वैल्यू मिल रहा है. एब्सोल्यूट वैल्यू हमको -6. लेट मी जस्ट चेक व्हाई -6. जस्ट अ मिनट. हाँ, मैथ डॉट रेंट जहाँ चले गया था. जस्ट अ मिनट, आंसर रॉन्ग हो गया था उसमें, दोनों मैथ डॉट रेंट. Okay, so let us see it now. Let's run this. यहाँ देखिए -5.6 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5.6 +5.6 का एब्सोल्यूट वैल्यू +5.6 है. मैक्स हमको 95 मिल रहा है, मिनिमम हमको 3 मिल रहा है, एंड रैंडम वैल्यू है. नाउ लुक एट दिस रैंडम वैल्यू. हम फिर से इसको रन करेंगे. लुक एट द रैंडम वैल्यू, चेंज हो गया. फिर से रन करते हैं. लुक एट द रैंडम वैल्यू, चेंज हो गया. फिर से रन करते हैं. लुक एट द रैंडम वैल्यू, चेंज हो गया. नाउ बेसिकली इसका मतलब ये है कि रैंडम वैल्यू आपको हमेशा रैंडम वैल्यू ही देगा. So it will always be a value that cannot be predicted. So that is the meaning of a random value. ठीक है. So given this, you have completed the idea of how we are going to do it. But obviously हमको और भी question solve करना है. सिर्फ इसको जानने से नहीं होता है. There are a lot of variations where we get questions. Let me show you a variation. ठीक है. Let me show you a variation. Math class variation. ठीक है. Let's remove this. Okay, so math dot max, math dot min 6,7, 9, 6,10, 8. ठीक है. So this is a kind of a variation. Let us see. तो देखिए मैथ डॉट मैक्स के अंदर भी एक मैथ डॉट मिन है. यानी मैथ डॉट मिन हमको क्या आंसर देगा? पहले पहले ही हमको 6 देगा. एंड देन 6 और 8 में मैक्सिमम क्या है? 8 है. Then the answer should come down to 8. So let us just run this. There we go. The answer is 8. So this is a variation of how we are going to use math classes in our एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली देगा और ऐसे ही देगा, वेरिएशन करके देगा. या आपको बोलेगा कि किसी मैथमेटिकल फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना है यूजिंग ऑल ऑफ दीज फंक्शंस. तो आपको हम सिंबल्स दिखा दिया है कि अगर आपको ये सिंबल मिलता है जिसमें आपको टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में एक वैल्यू रहता है, देन उसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू. यू नीड टू रिकॉग्नाइज दिस सिंबल्स एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट. ठीक है. So that concludes my chapter for today, and it's a very important chapter. We will be doing a lot of questions on this. So if you have a doubt, now is the time to tell.